is partially digested by hydrogen chloride or HCl and gastric juices secreted by the walls of the stomach. This partially digested food, called chyme, which receives pancreatic juices and bile through a common stomach. This partially digested food, called chyme, then passes into the duodenum, which receives pancreatic juices and bile through a common bile duct. The pancreatic juices digest carbohydrates and proteins, while the bile emulsifies fat present in the food. The digestion of food is completed in the intestine, where it is absorbed by numerous finger-like projections called villi and ऑलमोस्ट हमारे जैसा तरीका है इनका, ठीक है, microvilli. The undigested solid waste passes through the rectum and is finally egested through the cloaca. The anatomical study also includes the हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. respiratory system. Interestingly, frogs respire in water. फ्रॉग जो है वो फाइलम एम्फीबिया से है, सॉरी सुपर क्लास एम्फीबिया से है, ठीक है. ये वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है. And on land in two different ways. In water, the frog's skin functions as the तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं. मतलब थ्रू स्किन के, मतलब इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है. दे हैव वेरी मॉइस्ट स्किन, ठीक है. respiratory organ, and the gaseous exchange takes place through diffusion. This is called cutaneous respiration. On land, a frog respires through the buccal cavity, skin, and lungs. During respiration, air is drawn into the buccal cavity through the nostrils and is forced into the lungs. This type of respiration through the lungs is called pulmonary respiration. तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम बोलते हैं पल्मनरी. Did you know that during estivation and hibernation, frogs respire only through their skin? ना ये दो टर्म्स क्या है. एस्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप. फ्रॉग का सबसे बड़ा जो बैकलॉग है वो ये है कि फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड होता है. कोल्ड ब्लडेड का मतलब कैन नॉट मेंटेन द टेम्परेचर एज पर द एनवायरनमेंट. मतलब अगर ठंड होगी तो इसका शरीर ठंड को मेंटेन करने के लिए खुद को गर्म नहीं रख सकता. तो अगर ठंड हो जाती है तो कुछ फ्रॉग्स क्या करते हैं इन विंटर, ये अपने आप को मिट्टी के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, चुपचाप बैठते हैं और उस समय स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं. इसको बोलते हैं हाइबरनेशन. दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप. कई फ्रॉग्स जो होते हैं वो गर्मी को नहीं सह पाते हैं तो वो गर्मी के वक्त अंदर आ जाते हैं. उसको बोलते हैं समर स्लीप, ताकि वो शेड में रहे, उनका टेम्परेचर ठंडा रहे. अपने आप जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते उनको ये सब करना पड़ता है. तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है. The vascular system also forms a part of the वस्कुलर सिस्टम हो गया आपका हार्ट, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम. anatomical study, and
consists of a well-developed blood vascular system and a lymphatic. See, blood vascular system to carry oxygen, lymphatic system is to fight. lymph में और blood में क्या फ़र्क होता है? blood में आ गया प्लाज्मा, येलो फ्लूइड प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है। लिम्फ में में आता है प्लाज्मा में से आप माइनस कर दीजिए, आरबीसी नहीं होंगे इसमें, तो रेड ब्लड सेल्स चले गए, ठीक है। इसमें ये चीज़ पीछे रह गया, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स रह गए, तो ये लिम्फ सिस्टम बनाते हैं, मतलब इसे रेड पोर्शन नहीं हो, तो लिम्फ इज़ एक्चुअली वाइट इन कलर। ये लड़ाई में मतलब इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। The blood vascular system consists of the heart, blood vessels, and blood, while the lymphatic system consists of lymph, lymph channels, and lymph nodes. The heart is situated in the upper part of the body cavity and consists of 3 chambers. तो हार्ट कैसा है इनका? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। मिक्स ब्लड जाता है इसमें, मिक्स ब्लड मतलब ऑक्सीजन प्लस डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर जाता है। 2 atria and 1 ventricle, and is covered. इसमें 2 एट्रियाज हैं और 1 वेंट्रिकल है, दैट्स व्हाई 3 चैम्बर्ड हार्ट है। By the pericardium. Pericardium is a covering of the heart. The right atrium is connected to the sinus venosus, which receives blood through the major veins called vena cava. एक बात आप इसको कहीं नोट कर लो, नोट इट। साइनस वेनस जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जो वेना कावा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जाएगा अब राइट एट्रियम में, किसके थ्रू? साइनस वीनस के थ्रू। साइनस वीनस एक ऐसी जगह है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है, जो कि ये वाली वेन्स लेकर आ रही है। हो सके तो ड्रॉ कर लो। The oxygenated blood is then pumped into the ventricle, which opens into a sac-like structure called the conus arteriosus. The oxygenated blood is then pumped into the ventricle, which opens into a sac-like structure called the conus arteriosus. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कॉनस आर्टरियोसिस में, यहाँ से ये होता हुआ पूरे बॉडी में जो है वो मूव करेगा। After which it is distributed to different parts of the body by arteries of the arterial system. Deoxygenated blood from the different parts of the body is collected by veins or the venous system and is pumped into the heart. Frogs also have a hepatic portal system and renal portal system. नाउ व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? पहले तो समझो पोर्टल सिस्टम क्या है। देखो, एक हो गया हार्ट, ये हो गया टिश्यू। तो हार्ट को टिश्यू ने दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट ने पंप करके टिश्यू को दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सीधा सीधा काम है, इसको कहते हैं सर्कुलेशन हो गया। अब मान लो ये आपका हार्ट है, ये आपका टिश्यू है कोई भी, और ये बीच में आ गया लीवर, ठीक है। अब हार्ट ने टिश्यू ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया,
अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हार्ट के पास नहीं जाएगा, ये लीवर के पास जाएगा। लीवर क्या करेगा, अपनी सिक्रीशंस इसमें डालेगा, यहाँ से लीवर के पास गया, लीवर के पास से एक वेन निकलेगी। लीवर क्या करेगा, इसने जो कुछ भी बनाया वैसे ग्लाइकोजन इसमें डाल दिया। अच्छा जी, तो लीवर से टिश्यू जा रहा है, टिश्यू कह रहा है मेरा तो हार्ट के पास जा रहा हूँ, चल मैं गुजरता गुजरता लीवर के पास चल रहा हूँ। लीवर अपनी चीज़ें इसमें डालेगा और हार्ट को देगा। तो हार्ट के पास इस समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस ग्लाइकोजन वगैरह पहुँच गया, जो लीवर को पर्टिकुलर टिश्यू को पहुँचाना होगा। हार्ट अब इसको ऑक्सीजनेटेड करेगा। हार्ट ने इसको क्या किया, ऑक्सीजनेटेड किया और फिर टिश्यू को दे दिया, और टिश्यू के पास अब ग्लाइकोजन भी पहुंच गया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम्स। अब यहाँ पे लीवर इंक्लूड है तो इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। क्या बोलते हैं इसको, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगर सीधा जाता है तो सर्कुलेशन है। पोर्टल हो गया किसी पोर्ट पे रुकना, किसी बंदरगाह पे रुकना, वहाँ से अपनी चीज़ उठाना फिर आगे जाना, है ना। रीनल पोर्टल सिस्टम में ये किडनी से गुजरता हुआ जाएगा। तो इसके पास दोनों सिस्टम्स होते हैं। तो ये हार्ट हो गया, ये टिश्यू हो गया, बीच में किडनी आएगी, तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। In the hepatic portal system, veins are connected to the liver and the intestine, while in the renal portal system, veins are connected to the kidney and lower parts of the body. The blood consists of plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets, while the lymph lacks red blood cells and a few proteins. मैंने पीछे आपको बताया लिम्फ क्या होता है, वो याद रखना। As the heart beats, blood circulates various substances such as gases, nutrients, and hormones to different parts of the body. The anatomical study also includes the excretory system. This system consists of a pair of kidneys, ureters, the urinary bladder, and cloaca. ठीक है, तो इसको देख लो। इसमें 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और क्लोएका है। क्लोएका एक ओपनिंग है जो यूरिन भी पास करेगी, जो स्टूल भी पास करेगी और जो स्टूल भी पास करेगी। तो एक ही ओपनिंग से सब निकल जाएगा, यूरिन भी, स्टूल भी, स्पर्म भी, जो कुछ भी पास होना है वो यहीं से जाएगा। तो एक ही ट्रैक है ये। The kidneys are dark red, bean-shaped structures situated on either side of the vertebral column. Each kidney consists of several nephrons and gives rise to a ureter. In male frogs, the 2 ureters function as a urinogenital duct and open into the. याद रखना, जो आपकी मेल पे है, मेल है, ये फीमेल है। यूरिन जो किडनी है हमारे सिस्टम में, ह्यूमन मेल में क्या होता है, यूरिन पास होने के लिए यूरेटर होता है और स्पर्म पास होने के लिए वासा डेफरेंशिया होती है। यहाँ पर यूरिनोजेनिटल मतलब यहाँ पे यूरेटर ही क्या कर रहा है, एक्ट एज जेनिटल हो गया स्पर्म। दोनों यहीं से पास होते हैं, दोनों क्या होते हैं, यहीं से पास होते हैं, ठीक है। Cloaca. However, in female frogs, the ureters and the oviduct open separately into the cloaca. फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में ओविडक्ट और वो यूरेटर अलग। Towards the ventral side of the rectum is a thin-walled urinary bladder which also opens into the cloaca.
देखो The nephrons in the kidneys यूरिनरी absorb ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास करेगा, रेक्टम से स्टूल पास करेगा, बट जाना उन्होंने एक ही ओपनिंग से है, वो है क्लोएका। the excretory wastes from the blood and convert them into urea. As frogs excrete urea, they are called ureotelic animals. एक और बात याद रखो, हमने यूरिन से, एक्सक्रीशन से जो प्रोडक्ट बाहर निकालना है वो है अमोनिया, बेसिक। पर जो ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है, यानी वो बहुत पानी में रह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली अमोनिया रिलीज कर सकते हैं, डायरेक्टली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं अमोनियोटेलिक। टेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। पर जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल रहते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अमोनिया बहुत पंजेंट है। तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के यूरिया बनाते हैं, और यूरिया जो है वो रिलीज करते हैं, जिसे हम इसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। जैसे ये जो टेरेस्ट्रियल रहता है ज़्यादातर, तो ये यूरियोटेलिक करेगा। फिर ठीक है, The endocrine glands and the nervous system are also a part of the anatomical study. In frogs, the chemical coordination of different organs is brought about by hormones that are secreted by the endocrine glands. These include pituitary, thyroid, देखो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी, थायराइड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो हार्मोन को ब्लड में छोड़ता है, किसी पाइप में नहीं छोड़ता, डायरेक्टली हार्मोन को किस में छोड़ता है, ब्लड में छोड़ता है। और ये सारे हार्मोन्स हैं इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। गुनाड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन, जैसे टेस्टीज, ओवरीज। गुनाड्स को हम सेक्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो फॉर्म करता है सेक्स सेल और गैमीट। सेक्स सेल, गैमीट। तो टेस्टीज मेल में होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ओवरी फीमेल में होता है। टेस्टीज बनाते हैं स्पर्म, और ओवरी बनाता है एग। ये फीमेल सेक्स सेल है, स्पर्म मेल सेक्स सेल है। ठीक है, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals, and gonads. The nervous system in frogs includes the central, peripheral, and autonomic nervous systems. रावण का आंतरिक And autonomic nervous systems. The central nervous system consists of the brain and spinal cord. जैसे हमारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इनमें भी CNS होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The peripheral nervous system consists of cranial and spinal nerves. तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो CNS इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं
cranial nerves, which is made. स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, सो पेरिफेरल, ठीक है। And the autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nervous systems. हमने The brain is enclosed in a cranium and is divided into the forebrain, midbrain, and hindbrain. हमारे जैसा है, The forebrain consists of olfactory lobes, स्मेल के लिए, paired cerebral hemispheres, and an unpaired diencephalon. The midbrain bears a pair of optic lobes, Optic and the मतलब देखने के hindbrain लिए, consists of the cerebellum and medulla oblongata. जो पोस्चर्स बना के रखता है। The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord, which is enclosed in the vertebral column. ये वर्टिबल कॉलम है, ये The हड्डियों का brain ढांचा gives है। rise to 10 pairs of cranial nerves, ये लिख लेना which कहीं, provide 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो 10 का जोड़ा है पेयर क्रेनियल नर्व्स का। दिमाग में कितनी नर्व्स हैं इसके? 10 का जोड़ा, यानी टोटल 20। information to the brain. Besides a well-developed nervous system, frogs also possess different sense organs such as sensory papillae, taste buds, nasal epithelium, eyes, and a tympanum with internal ears. However, only the eyes and internal ears are well-organized structures, while others are cellular aggregations around nerve endings. The eyes are simple and are situated in the orbit of the skull, and behind each eye is a tympanum that serves as a hearing and a balancing organ. Finally, let's learn about the reproductive system. Frogs are unisexual animals with well-developed फ्रॉग्स हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। जो फ्रॉग होता है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल फीमेल अलग होता है। ठीक है, दे आर डायोशियस। सेक्सीज आर सेपरेट कहते हैं इसको। male and female reproductive systems. The male reproductive system consists of two yellowish ovoid testes, which are attached to the upper part of the kidneys by the 2 टेस्टिस हैं बेटा, ठीक है, ये भी टेस्टिस है। ये जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, सिचुएटेड कहाँ पे है? किडनी के ऊपर है, याद रखना। हमारे में नहीं होता ऐसे, पर फ्रॉग में ऐसे ही होता है। mesozochium. किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है? एक फोल्ड होता है, मतलब ये किडनी है और ये टेस्टिस है, तो आपस में जो जोड़ा जाता है जिस फोल्ड से, उसे हम बोलते हैं मेसोजोर्कियम, द फोल्ड ऑफ द स्किन। ये कनेक्टिंग लिंक है, जोड़ है। लिख लेना ये सब कुछ, भाई आराम से देखना ये वीडियोस जब वेले हो जाओगे। From each testis arise 5 to 6 vasa deferentia that enter the kidneys and open into the Bidder's canal. देखो क्या हो रहा है, टेस्टिस की पाइप्स हैं जिसे हम वासा डेफरेंशिया बोलते हैं, दिस इज टेस्टिस। तो टेस्टिस में वासा डेफरेंशिया, ये वासा डेफरेंशिया, ये देखो ये सब वासा डेफरेंशिया, इसमें स्पर्म होगा, मान लो कि इसमें स्पर्म है। ये स्पर्म जाएगा गुजरता हुआ किडनी के अंदर, और किडनी में एक कैनाल है, बिडर्स कैनाल। किस में है ये? किडनी में है। यानी फ्रॉग की अगर किडनी खराब होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम तो किडनी के अंदर है, दोनों लिंक्ड है।
ठीक है, ये यहाँ से स्पर्म्स में एंटर करेगा, ये स्पर्म फिर यूरेटर में चला जाएगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, The vasa deferentia finally join the urogenital duct and open into the cloaca. ठीक है, तो The cloaca is a small तो what is happening here? This is testy, ये टेस्टीज है, ये वासा डेफरेंशिया है, और ये बहुत सारी वासा डेफरेंशिया है जो इसमें ओपन हो रही है, किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल है। ठीक है, ये गई यहाँ से, ये टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, इन सब में स्पर्म आया, स्पर्म पहुँच गया बिडर्स कैनाल में। अब बिडर्स कैनाल से पहुँचेगा यूरेटर में। अब यूरेटर, किडनी से जो यूरिन आएगा वो भी यूरेटर में जाएगा। मैम शिवांग सर मीटिंग ले रहे हैं, तो फिर मैं कैसे जाऊँ? बैठे रहूँ अभी? जाओ, सर फिर ठीक है, तो उसके बाद वो बिडर्स कैनाल से होता हुआ इसमें चला जाएगा। यूरेटर में, यूरेटर यूरिन को भी कैरी करता है क्योंकि किडनी का यूरिन भी इसी में आएगा, और जेनिटल का जो जेनिटल होते हैं सेक्स ऑर्गन्स वो भी इसी में आएगा, तो वो इसमें एंटर कर जाएगा। अब स्पर्म आ गया इसमें, यहाँ से स्पर्म, कोलेका से स्पर्म, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, देन दे कॉप्यूलेशन करेंगे, तो स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, median chamber that serves as a single opening that passes out fecal matter, urine and sperm. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. पेयर में However, जोड़ा है ओवरीज का। Unlike the testes, the ovaries are not connected to the kidneys. इसमें किडनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। From Female each part में। ovary arises an oviduct, which separately opens into the cloaca. Interestingly, a mature female frog can lay about 2,500. ये अंडे हैं, इनके जो एग्स हैं, ये जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये जो फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग नीचे होगा और जो मेल फ्रॉग होगा वो इसके ऊपर माउंट करेगा। द वर्ड इज़ कॉल्ड माउंट। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त स्पर्म और अंडा दोनों शरीर से बाहर आएंगे। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, स्पर्म और अंडा दोनों शरीर से बाहर आएंगे, और ये है वो बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, बच्चा बाहर बनता है, अंदर नहीं बनता। अब इतने कैरी किए होते हैं इसने अंडे, ये अंडे ये पानी में छोड़ देती है, छोड़ने के बाद जो रह गया, जो नहीं रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। 100 to 3,000 ova at a time. After copulation, the eggs are fertilized externally in the presence of water. फिर 5 मिनट रुक जाओगे, मैंने अभी वो भी नहीं बनाया, मैं नीचे थी। These eggs develop into tadpoles, which undergo metamorphosis to form adult frogs. मैंने डाटा ही नहीं बनाया, ये ऐसे ये बनानी होता है है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये चीज़ है। देखो मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ, ये अंडा था, अंडा लार्वल स्टेज से टैडपोल में, टैडपोल से अडल्ट बना। हम में भी ऐसा, हम सीधा जब सीधा अंडे से अडल्ट बन जाए, इसे बोलते हैं कि मेटामॉर्फोसिस नहीं हो। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, As the life cycle of frogs has a larval or tadpole stage, development is indirect. We've just studied the anatomical features of the frog, such as the digestive, ठीक है, तो ये हमने सारा पढ़ा है, विजुअली पढ़ा है, ध्यान से देखो इसको। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर बनने के लिए अभी 6 साल है, तो अभी छोटा छोटा पढ़ेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। अपने लिए टफ मत करो, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस में जाओगे तो मुश्किल होगा। इसको आराम से देखो, देखने के बाद इसको हम NCERT से पढ़ेंगे तो ये आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ईजीएस्ट टॉपिक्स हैं ये।